मदर का रोल जो है ना वो हम्म, बाकी सारे रोल मैंने स्प्लिट कर लिए कि ऑफिस में हम लोग दो डायरेक्टर की तरह काम करेंगे, घर में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे या पेरेंट्स हो जाएंगे, लेकिन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। माँ ही रहता है ना। वो माँ ही रहती है। कहीं पे भी चले जाओ, जो अपनी मदर टंग है, जो अपनी मातृभाषा है, उसको तो संजोना ही चाहिए। ये भाषा का जो है, अब हम लोग मल्टीलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल से मोनोलिंगुअल क्यों हो रहे हैं हम लोग? इतनी बड़ी देन थी खोती हम जा लोगों रही को, है ना, हाँ हमें इतनी भाषाएं बड़ी खोती जा देन रही थी है। कि हमारे बच्चे 3-4 लैंग्वेज तो बोल ही लेते थे। अगर आप जिस दिन लर्निंग स्टॉप कर दोगे ना, आपके ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। Namaste Bharti. Welcome, नमस्ते। welcome to this podcast, and I'm so happy to have you here. Thank you for taking out this time, and I'm sure we'll have a great conversation. सेम ईयर, Same here. डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू। Before we go into any further questions, सबसे पहले little bit about your business. What are you into? अबाउट माई बिजनेस आई कैन नॉट टेल इन लिटिल। अच्छा ठीक है, then you can go on. Yeah, because my friends tell कि they cannot introduce me or my business. They say कि वो 5 मिनट लगती है तुझे समझाने में। So simple way में मैं बोले तो आई एम वर्किंग इनटू मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्री। मटेरियल हैंडलिंग बोलो तो क्रेन्स जो है, अभी मेट्रो की वजह से सिटीज में आ गई है क्रेन्स, एंड यू कैन सी दोज क्रेन्स। हाँ अर्लियर दोज क्रेन्स वेर ओनली वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, तो देखी भी नहीं थी। ठीक सो है। अभी आप मेट्रो के आजू बाजू जितनी भी क्रेनें देखते हैं, so we provide electronic solutions for those cranes. We trade into those cranes, so we buy and sell those cranes. Okay. And another equipment you must have seen, that is बंदे ऊपर बास्केट में बैठ के ऊपर जाके काम करते हैं, that is called aerial platform or man lifts. Man lifts. So Okay. we rent those, we sell those, Okay. and we provide electronic solutions for all these equipment. There are Okay. many other things. There are portal cranes, there are factory cranes, there Okay. are forklifts. तो इन Okay. सब के लिए हम लोग सेफ्टी सॉल्यूशंस देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल। अच्छा। And now we have started connecting those equipment to cloud. So people who are using those cranes for their projects, they can see utilization, the maintenance, operation data sitting in their office. Okay. So So all these machines, they are उनका जो भी data है, that is connected. They are we are that can be seen that is online. the future. We are working on that project. At the Okay. moment, we give electronic device Okay. which makes operation of that thing safe. Okay. So Because is it automation that you give to the lift a or? little bit of automation. You can say it is automation. अच्छा. Yeah, it is aid for the operator. Basically, whoever is doing lifting and shifting of man and material, we provide them with whether their equipment is operated safely or not. तो कितना लोड उठाना है, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, वो ऑपरेटर को उसके सामने एक स्क्रीन पे दिखता है कि ही इज ऑपरेटिंग इट सेफली। एंड बिसाइड्स दैट वी सेल, वी रेंट, we buy these equipment. These equipments. Yeah. So who are your customers? Prima facie. Prima facie, all the EPC contractors, that is EPC companies, contractors, and Okay. rental companies. And rental companies. And now we have got these aerial platforms. JCB has started manufacturing in India. JCB is known for earth moving equipment. Earth moving है, below earth means digging करना है या कुछ भी करना है. Right. So JCB has started manufacturing in the Jaipur plant these aerial platforms. अच्छा. So we are now the dealers for Western Zone. Okay. So Gujarat, Maharashtra, Goa comes under us. Okay. So now we are selling those equipment, maintaining those equipment. Okay. So the customer has an option either to outright buy it from you or rent also. From Both us. the options are available. Both the options are available. Okay. And so now my one more segment is that manufacturing plants, they have started buying. Okay. Okay, manufacturing plant, any, you can say automobile plants or pharmaceutical plants or food industry. Whoever is having plant are using this equipment. Okay. So what do you suggest is better for a customer? Should they be renting it or should they be outright buying it from their perspective? From their perspective, it depends on your strategy. Whether you want to become asset heavy or you want to become asset light. Okay, owning an equipment is there is a life cycle of the equipment. Right. Okay, so you want to maintain it, you want to operate it on your own, or you want to focus on your core business and want to rent it out. Acha. Take it on rental. Okay. So this depends on your company, because owning has some benefits and renting also has benefits. So generally, when I was more focused on renting, now I'm more focused on selling. So I can convince my client in both the ways. Acha. Okay. Yeah. So do you mentor your customers as to what would be good for them, or it is just on their decision as to
whether they would like to No, decide no. between it. At times we do educate our customers Okay. because see, if usage is less, it is better to Rent it out. rent it out. If usage is more, it's better that you have your own equipment. Again, it depends on the project. If project is limited, then it's better to rent. Then it is I better had to written an article and it's there on LinkedIn. Yes, I think so. Renting or Yes. buying and what is the And I think that is a good thing. That is a kind of a value addition where you educate your customers. see. Now we are in business from last 23 years. Okay. Okay. Mm-hmm. We changed now. This present business is 15 years, but Okay. we have started business from in 2000. Okay. So people know us because we are authentic. We give them right advice. If any component does not need replacement, it works with replacement. I don't sell them new equipment. Right. So we give right advice because finally customer benefits, we benefit. बिल्कुल बिल्कुल. So our philosophy is never take advantage of customers' ignorance. Yeah, क्या बात है. Yeah. I think you were with your father's business also. Yeah. So a little bit about that. कि at what age you entered into his business and what exactly was it that you were doing? Yeah. और क्या काम था वो? I think I entered my father's business when I was 26, Okay. 26 years old. ठीक है. After your engineering. After my engineering, after my marriage. अच्छा. Yeah. Okay. Yeah. That's interesting. Yeah. So Nitin was working at that time. Yeah, we both were working. I have done job for 3-4 years only, and then I already left the job. Acha. Nitin was working somewhere. ठीक है. Then we had some family incidents, and we both had to change the job or search for better jobs. ठीक है. Till that time we were very not concerned about कि कितनी पगार मिल रही है, क्या मिल रहा है, काम एंजॉय कर रहे. दोनों ही हमारे इंजीनियर थे इलेक्ट्रॉनिक्स पे और दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे. But then suddenly there were some financial requirements at home, so we wanted to have better jobs. Right. So he went to Sangvi Movers and he totally changed electronic engineer going into crane industry. Okay. And I went into cooling tower industry. Okay. To my father's business. अच्छा. So I was there for 7 years and today also I am there on board, but I am not actively participating into anything. So I was looking after little bit of design and sales. अच्छा. So my father was sitting in Delhi. I was sitting in Pune. अच्छा. So Pune से Southern India का sales. हाँ हाँ. And it was a concept selling because our cooling towers were totally energy saver. Okay. And made in India. Made in India. Technology also made what to say from Indian technology. बढ़िया. So till date we were fighting with American technologies and European technologies, and still it is the same scenario. Still fighting. Still fighting. Yeah. Okay. But I enjoyed a lot. I learned what is sales. Yeah. Your father taught you? Father taught me it was distant learning. My father had very peculiar style of teaching. He puts you into situation and you have to find the way out. Okay. It is always self-learning. Self-learning. His always, work was to put you in situation. Yeah, he always puts you into a situation and then you have to find your way out. Okay. So that was the way you learned. Yeah. So primarily into sales with your primarily father? Into sales, and I was R&D engineer and I didn't know what is sales. So I used to sit in front of telephone कि अभी उठाना है and I have to call somebody and I have to talk with him. अच्छा, cold calls. Cold calls. You started your sales career with cold calls. Cold calls. Very then nice. Visiting them. So I was the only person. And funny thing is, what designation I took was product coordinator. अभी ऐसा कोई डेजिग्नेशन नहीं होता है प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर. तुमने खुद ने बनाई क्या? मैंने खुद ने बनाई थी. ठीक है. तो इसमें क्या होता है ना कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर नथिंग एंड आई एम अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग. प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर में कुछ भी आ सकता है. कुछ भी आ सकता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. तो मुझे आई एम फ्रॉम फैमिली और ऐसा कुछ मुझे बताने नहीं था. हाँ, ठीक जिनको पता था अभी इंडस्ट्री में जो पीपल न्यू माय फादर, दे न्यू दैट आई एम हिज डॉटर. बट आई डिडंट वांट टू टेक एडवांटेज दैट आई एम कमिंग विद दिस. So product coordinator हूँ. आप मुझे you can scold me also and you can praise me also. I can do sales, I can do whatever I was comfortable with, I used to do. ठीक है. So that was very comfortable position and convenient for me. So I used to visit sites also because we were into replacement of cooling towers. So existing cooling tower है, उसका pump, piping, उसका जो भी tank वगैरह देखना है, measure करना है, ऊपर जाना है, पंखे का specification देखना है. पुराने towers थे.
उनको चेंज करना है, हाँ तो सारे डिटेल्स लेना, ये सारे काम मैंने किए, अच्छा। रिप्लेसमेंट भी किया। अच्छा। आई यूज्ड टू मीट कंसल्टेंट्स आल्सो, आई यूज्ड टू मीट द सप्लायर्स आल्सो, द हाँ। क्लाइंट्स आल्सो। हम्म। प्रेजेंटेशन भी देती थी। माय Very फर्स्ट nice. प्रेजेंटेशन आई गेव ड्यूरिंग दैट टेन्योर। माय हाँ। फर्स्ट प्रेजेंटेशन वाज इन फ्रंट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी अरे एंड वाह। 40 इंजीनियर्स वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ओ मी। माय गॉड। फिर? नहीं, फिर हो गया, बहुत अच्छा हुआ वो, बहुत हाँ। अच्छा हुआ, बिकॉज आई लाइक द प्रोडक्ट। आज भी आप मुझे बोलोगे ना, आई कैन हाँ। गिव दैट प्रेजेंटेशन। क्या बात है। नाउ इट इज 24 years. और प्रोडक्ट नॉलेज देख के आई या फिर कुछ ऐसे प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, कैसा हुआ? It was not proper training. हाँ। Our factory is in Vapi, so I visited हाँ। Vapi अच्छा। factory. I read a lot. For 2 months, I was just reading. There are 50 files ओके। in the office. ओके। So for 2 months, I was just reading. I was going through those हम्म। files. I हम्म। didn't know what inquiry is, what is a quotation, how to send quotation, राइट। order और क्या होता है. स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस था क्या बिफोर यू वर देयर? व्हेन यू It- केम यू एंटर्ड इनटू सेल्स, बट उससे Yeah. पहले स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस था सेल्स का? There were defined things, अच्छा। processes ऐसे defined लिख के नहीं रखी थी, लिख के but नहीं थी। documentation was there. ओके। Documentation reference means, material था हाँ, ना? means the reference material was there, ठीक like है। और documentation कैसे होना चाहिए, drawings हाँ। कैसे होने हाँ। चाहिए, so everything was there. ठीक है। But training नहीं था, हाँ हाँ but हाँ। you learn, You learn. you learn. राइट राइट। Yeah, and my uncle was there, so Okay. for any difficulty, he was technical kind of a person, very much detail oriented. हम्म। So कुछ difficulty आई कुछ, because it was thermodynamics. Okay, thermodynamics was only one subject in the Entire engineering. entire engineering. And this was purely Purely thermodynamics. thermodynamics. Yeah. तो फिर you were there with your father 7 years, and then you and Nitin started. 2 years were common. हाँ, In अच्छा। 2000 to 2000, up 2002, I stopped looking after my father's business हाँ। because 1998 my brother joined. अच्छा। So धीरे 4 years धीरे were हाँ। together. Okay. 2000 we started our business. So ठीक है। 2000 to 2002 I was handling Both the both the businesses. businesses. ठीक है। So from cooling towers, then into cranes. Cranes. From working with your father, then started working with your husband. Yeah. ठीक है। So I want to come to the point कि वहाँ पे कैसा, see it's you're working with your family है ना, यहाँ पे पापा है साथ में, चाहे आप कहाँ पे भी बैठे हो कैसे भी हो, बट इंटरेक्शंस होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, सब होता है, एंड देन नाउ बोथ ऑफ यू वर स्टार्टेड वर्किंग. सो बहुत डिफरेंस था उसमें, उस काम करने के स्टाइल में, डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट थे, या फिर हाउ वाज इट द एक्सपीरियंस? See, generally what happens, I always put myself into a situation which is, I always come out of comfort zone and put myself into difficult situation, always. अच्छा. It has happened with me. हाँ हाँ, I can see that. So disruptive चीज कर देने की and then you start learning. अच्छा. So it's a harder way to learn, but I have learned that way only. So I have worked alone. First business I started on my own, which lasted for 1 year, and I earned as much as I was earning in my job. That I had to abruptly stop because of some medical emergency at home. Then I started working with my father. ठीक है. And that was एक अच्छी फीलिंग होती है ना कि सेकेंड जनरेशन को सिखा रहे हैं. When we used to go together, then I used to tell him कि you stop at technical discussion, commercial मैं I'll take over. Okay, so comfortably हम लोग कर लेते थे, रोल प्ले करते थे कि नहीं पापा आप रुक जाना, उसके बाद मैं करूँगी. You've been on meetings together. Yeah. अरे वाह, कितना इंटरेस्टिंग होता होगा ना. फिर उनको स्टॉप करना पड़ता था because see, what I believe is technical person should not do sales. बिल्कुल I agree to that totally. So we had to convince him कि आप यहीं पे रुक जाइए. यहाँ पे रुक जाओ. रुक जाते थे. Good. Then I started working with my brother. He's a younger brother, but I treat him as equal और elder brother की तरह मैं उसको ट्रीट करती हूँ. So वो भी बहुत मजा आया, हम दोनों ने साथ में काम किया. फिर हम लोगों ने उस वक्त ना कंसेप्ट सेलिंग बहुत की, प्रेजेंटेशंस बहुत दिए, काम इसमें सेल्स में बहुत काम किया. वो भी बहुत मजा आया. उसके बाद नितिन के साथ बिजनेस शुरू किया. सो नितिन के साथ बिजनेस शुरू किया हमने. 2 बिजनेसेस शुरू किए थे. एक हम इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल बनाते थे. ओके. उसका डिजाइनिंग का पार्ट नितिन देखते थे. और दूसरा नितिन ने क्रेन ट्रेडिंग और क्रेन मेंटेनेंस शुरू किया था. तब इंडिया में जर्मन क्रेन्स, पुराने क्रेन्स आते थे. तो उसका मेंटेनेंस का काम जो है ना, लोग नितिन को बुलाते थे. ही वाज नोन फॉर दैट टेक्निकली. सो अपने इंडिया के कोने कोने से लोग आके उसको पकड़ के लेके जाते थे. एंड देन वी इवेंचुअली वी स्टार्टेड ट्रेडिंग इनटू दोस क्रेन्स. तो ये जो फील्ड थे ना, अभी वेइंग स्केल वाज
I could understand because it's electronics. Mhm. Okay. Mhm. But we had to stop it within 3 years Hmm. because हम दोनों का जो बात करने की जो कॉमन पॉइंट था ना, Mhm. उसमें कुछ मैचिंग नहीं हो रहा था. अच्छा. आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि इसमें क्या ये छोटा कंपोनेंट है ना, इसमें हमें 10 पैसे कम करने चाहिए. Because Chinese competition was coming up and we had to make that product more and more economical. So I used to talk in paisa हाँ, and he used to was talk. selling cranes, he was to talk in lakhs and crores. अच्छा, okay. तो कुछ So you were handling the weighing scale wala, weighing scale wala. and he was talking about Yeah. the cranes. See what okay. happened now, I had experience of sales Right, and he had experience of maintenance and operations. right. We started business where my sales knowledge was not required because this was sale because of Nitin had some expertise. Right. Okay, and weighing scale ka scale neither he knew nor I knew. It was we were fighting against Chinese competition. अच्छा. It was first generation business. We had partners also. So अच्छा. partner के साथ Scales वाला business scales था? वाला business Oh, था. okay. So फिर one fine day I decided कि Nitin this is not working for me. I cannot because he was not understanding 10 पैसे क्यों कम करना चाहती है तू? उससे क्या फर्क पड़ने उससे वाला क्या है? फर्क पड़ने वाला है? हाँ. और मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था सब कुछ, तो मैंने मेरे पार्टनर को बोला कि आप ले लीजिए. Okay. आई लेफ्ट दैट बिजनेस Okay. एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग दिस. मीनवाइल हमें एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी का डीलरशिप भी मिला था फॉर द क्रेन इक्विपमेंट ओनली, जो आज हम बना रहे हैं ना. अच्छा. वी आर स्टिल डीलर ऑफ दैट कंपनी एंड वी And आर you still manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग. विद देयर परमिशन वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग Okay. आल्सो. Okay. सो देन बट स्टिल देयर वाज नो सेल्स बिकॉज हमें रेफरेंस से ही बिजनेस आता था. और दूसरा ना, वी वर नॉट फोकस्ड ऑन कि ग्रोथ करनी है, ये करनी है. वी वर एंजॉइंग बीइंग टुगेदर. Okay. Okay. सो इट वाज देयर वाज नो फोकस कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करना है, मार्जिन मिलना है अच्छे. और गुड थिंग वाज सप्लायर हमें क्रेडिट देता था और क्लाइंट हमें एडवांस देता था. क्या बात है. तो but how did you divide the work? I mean when you started after all of this, ठीक है, when you were both in the crane business. Yeah. तो उस समय पे did you naturally take up sales, and since he was a technical person so he focused, the bifurcation happened immediately in the I'll beginning? again come back to point, the technical person should not do sales. हाँ. Okay, so हाँ. Nitin is highly technical. Right. Okay, so what I did was I joined I learned accounts अच्छा. by joining a class. Okay. क्योंकि अगर business करना है, I had seen my father's business and we had started business. So business में crucial part होता है कि आपको पैसा मैनेज करना आना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. बैकबोन होती है. बैकबोन होती है. सो मुझे नेचुरली मुझे लगा कि दिस आई ओनली हैव टू डू दिस. अच्छा, because he is a technical person, so He's a he's technical happy person. being the technical Yeah. person. And my brother had given me option that you take over that business, father's business. But I realized that at that time both the kids were born. So with 2 kids, I have to have a job which is less traveling Right. till the time they are growing up. And in 7 years I had traveled a lot. So मुझे stationary रहना था, and so I was like a pivot point. Okay. And Nitin was traveling a lot. Lot means lot. And he was the NRI for 3 years. Oh. So 183 days he was out of country. Yeah. Okay. 2007, 8, 9. Oh, the children must have been small at that time. Yeah. So kids, business, mother-in-law, family, everything. their school, everything was on me. So that's why I said कि I'll be stationary, I'll be a pivot point. So whatever is falling back, जिथे कमी तिथे आम्ही मराठी में बोलते हैं. वो तो है ही. Yeah. वो आई थिंक नेचुरली हो ही जाता है. और ब्रॉडली क्लासिफिकेशन एक तो हो गया कि मेरा स्टेशनरी एंड मूविंग कौन रहेगा. दूसरा हो गया टेक्निकल एंड कमर्शियल. सो आई स्टार्टेड विड्रॉइंग माई सेल्फ फ्रॉम टेक्निकल थिंग्स. आई कुड अंडरस्टैंड मोटा मोटी, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाती थी बिकॉज आई एम ऑल्सो R&D इंजीनियर. आई कैन ऑल्सो गो इनटू डिटेल्स. तो दोनों वहीं पे माथा पच्ची करें, उसका कोई मतलब नहीं है. सो आई स्टार्टेड व्हाट इज लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट फाइनेंस. पहले तो अकाउंट भी मैं ही मेंटेन करती थी. बट फ्रॉम डे वन से ना आई हैड टीम. मैं बैक ऑफिस में सेल्स का बैक ऑफिस रहता था, अकाउंट के भी बंदे रहते थे मेरे पास. सो आई यूज्ड टू डू दैट. और कुछ भी कम पड़ा यहाँ पे मेंटेनेंस में, टेक्निकल में, किसी में भी, आई यूज्ड टू बी देयर. सो ब्रॉड क्लासिफिकेशन 2 वे में कर सकते हो, एक स्टेशनरी और दूसरा या फिर एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल. टेक्निकल और नॉन टेक्निकल. ग्रेट.
उसके बाद हम लोगों ने इतने बिजनेसेस किए हैं ना, तो काफी बार हो गया कि ये पूरा तू देख, ये पूरा तू देख, हाँ ऐसे भी करके देखा। हाँ। फिर ये देख किया कि यू बिकम सीईओ, यू बिकम सीईओ, अच्छा वैसे भी करके अच्छा देखा। ऐसे अच्छा। काफी हमने कॉम्बिनेशन करके देखे, ओके। बट वी रियलाइज कि वी आर कंफर्टेबल इन टेक्निकल एंड नॉन नॉन टेक्निकल टेक्निकल। वही ठीक है। या ग्रेट ग्रेट and I ग्रेट। being technical going to non technical, it is हाँ comfortable, no, because I understand things. हाँ, वो Yeah. बहुत important है बिकॉज इवन इफ यू आर सेलिंग Yeah. एंड इट इज अ टेक्निकल प्रोडक्ट यू Yeah. कांट बी टोटली नॉन टेक्निकल Yeah. So बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि कमर्शियल है तो सिर्फ yeah. आप उतना कमर्शियल पे ही स्टिक करके रह सकते हो। यू हैव टू So हैव दैट I can टेक्निकल go बिट into details also if required. if required. Yeah. And I think that is a great advantage to you Yeah. ना Yeah. कि आप टेक्निकली भी साउंड हो और आप फिर आप सेल्स में करते हो तो आई थिंक आपके पास Yeah. ना दो चीजें होती है। यू Yeah. हैव टू स्ट्रेंथ्स विद Yeah. यू। एंड इंजीनियरिंग में क्या है ना, 4 साल में 40 सब्जेक्ट सिखाते हैं, तो हाँ सब्जेक्ट तो नहीं सीखते, लेकिन हाँ हमारा ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाता है। बिल्कुल। सो वी बिकम वेरी क्विक लर्नर। कोई हाँ नई चीज सीखनी हो ना, तो हाँ। इंजीनियर को आसान हो जाता है, और आई इसीलिए थिंक आज वो माइंड एनालिटिकल भी हो एनालिटिकल जाता है। माइंड हो जाता है ना। दैट्स व्हाई इंजीनियर्स आर सक्सेसफुल वेरेवर दे गो। वेरेवर देखो चाहे मैनेजमेंट चले मैनेजमेंट जाओ हो चाहे किसी में या चले कहीं भी जाओ। चले जाओ। वेरी नाइस सो वेरी अपना इंटरेस्टिंग। 4 साल का जो होता है ना, हम्म। वो पूरा ट्रेनिंग मेरे ख्याल में वो ग्रास्पिंग एनालिटिकल स्किल उसी में होता है। बहुत बढ़िया वेरी नाइस। तो अभी नाउ योर सन हैज recently joined business, right? Yeah. So it's like, you know, work with your father, then both of you have been working together. एक I had style not होता thought है, of एक 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 कंफर्ट लेवल आ जाता है ना। सी आई एम वर्किंग विद मनीष, तो मुझे पता है हम दोनों कर लेते हैं काम बिकॉज आपकी ट्यूनिंग होती है, एक हार्मनी होती है। नाउ मेरे साथ तो माई चिल्ड्रन हैव नॉट येट एंटर्ड एंड आई डोंट थिंक सो दे विल एंटर, बट विद यू हर्ष हैज नाउ एंटर्ड इनटू बिजनेस। तो देयर इज अनदर डायमेंशन टू द वे यू वर्क बिकॉज एक आप टीम मेंबर की तरह भी नहीं उसको ट्रीट कर सकते हो, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, बट स्टिल वो एक आता है ना Yes. नो कि मेरे पेरेंट्स के साथ हूँ काम कर रहा हूँ। तो ऐसे में हाउ इज इट डिफरेंट? इज इट लाइक आई एम श्योर वो एक बहुत अच्छी एनर्जी आती है, नए आइडियाज आते हैं, सब कुछ आता है, बट फिर उसके साथ काम करने का स्टाइल सेम होता है क्या, या फिर क्या नया होता है, या फिर अच्छा होता है, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है? जस्ट अ लिटिल बिट लाइट ऑन दैट। Actually, we had not expected our kids will be, we wished, but we were not expecting that they हाँ will come into our business. अच्छा And Harshvardhan is a very creative person हाँ हाँ and quick learner. ओके। So I always wanted him in my business. लेकिन आजकल के मॉडर्न माँ बाप बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते आजकल के मॉडर्न माँ बाप ज्यादा डरे रहते हैं। बोल नहीं सकते। I work with my father, so I know what not to do. हाँ ये भी सही है। हाँ And secondly, I'm very very flexible. अच्छा। I'm very flexible with the situation, with people. और मुझे ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता काफ़ी चीज़ों का, और कभी कभी लगता है, मुझे कभी लगता है कि आई एम लिविंग सुपरफिशियली और व्हाट, लेकिन पड़ता है फर्क, बट आई वेरी फ्लेक्सिबल। अच्छा। सो जब हर्षवर्धन का ग्रेजुएशन हुआ, सो हर बच्चे के दिमाग में होता है कि मास्टर्स करना है। सो ही आल्सो वांटेड टू डू मास्टर्स। मीनवाइल उसने इंटर्नशिप में काम किया, वही भी जॉब किया। सो मेरा एक था कि अगर बिजनेस में आना है तो कम से कम 3 साल बाहर काम करके आओ। ठीक बात। सो बेसिक जो होती है ना, डिसिप्लिन, हाँ। डिपार्टमेंट्स कैसे होते हैं, ऑर्ग चार्ट कैसे होता है, व्हाट आर द प्रोसेसेस। और शायद बाहर जाते हैं ना तो हम ज्यादा सिंसियर हो जाते हैं हाँ, कि डिसिप्लिन में कैसे काम करना है वो शायद सीख जाते हैं वो एक होता है। और दूसरा क्या है ना, मैंने और नितिन ने, मैंने तो कभी किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं किया, मैंने जॉब ही नहीं कैसे देखा। 3-4 साल कुछ काम किया है, दैट आल्सो एसएमई में काम किया है। सो आई डोंट हैव दैट विजन व्हाट बिग कंपनीज हैव। सो मुझे लगता था कि बड़ी कंपनी में काम करके आना चाहिए। अभी अभी क्या, कोविड और ये सब आने की वजह से उनका वर्क फ्रॉम होम वगैरह ऐसा कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन था। सो ही हैज वर्कड आउटसाइड फॉर 2.5 years, and then he showed willingness that he wants to join. Wow. So this is this November only. Oh, Yeah. very recently. Very recently he has joined. Okay. So initially 1 month I said कि we are not going to tell anybody that you are joining. So you just come to office and see what is happening and what you want to pick up. ठीक बात है। We are okay with it. Then after 1 month he said कि I'll be looking after marketing and I'll be looking after design. अच्छा। So one thing of Nitin and one thing of mine. So Okay. now today he's reporting to both of us. Okay. And we have not bound anything. Okay. Reporting time, reporting frequency, तो कुछ अभी bind नहीं किया है, but slowly we are going to bring structure to it.
और बच्चों ने माँ बाप के हाथ के नीचे काम नहीं करना चाहिए. I believe into that. You should have some different line for them, vertical for them or product for them, something different where they can have implement their own ideas. They can have their own team, because definitely they are not going to like our style of working. हाँ, वो एक Okay. बहुत बड़ी Yeah. चीज होती है ना, बिकॉज हमारा एक तरीका सेट हो जाता है करने का. नाउ व्हेन दे कम इन, आई थिंक दैट इज व्हाट माय नेफ्यू शेयर्ड विद मी, दैट आई आप लोग इस तरह से काम करते हो, व्हाई डोंट यू यूज दिस टेक्नोलॉजी, व्हाई डोंट यू यूज दिस टेक्नोलॉजी. वी सेड जिस तरह से हम कर रहे हैं चल तो रहा है ना ठीक ठाक. तो देन इट इज इट्स अ बिग थिंग which causes friction. Yeah. कि something can make your work easier, smoother, faster, and still you're not, because हमारा एक तरीका सेट हो जाता है. Yeah. So उसको डील कैसे करना होता है वो आई थिंक इज अ बिग Yeah, so चैलेंज. I don't tell him that जो हाँ. कर रहे हैं वो सही है. I tell him हाँ. okay, फिर कैसे करना है बताओ. हाँ हाँ So I told you ना, I'm हाँ. little flexible कि अगर उसको करना है, because I have seen कि अगर आप जिस दिन learning stop कर दोगे ना, आपके growth stop हो जाती है. बिल्कुल, और सही बात इतनी टेक्नोलॉजी और everything is changing, socially things are changing, technically things are changing, you have to adapt it to very fast. बिल्कुल. कहीं तो भी लिमिट आ जाएगी, but बट स्टिल जब तक आप still हो जब बिजनेस तक में हो तब ना, तक तो हाँ. आपको करना ही है. So he also tells me कि use this, use that, ये करो, ये ऐप यूज करो, ये हाँ. I tell him okay ठीक है, मैं डाउनलोड करती हूँ, मैं देखती हूँ मैं. और whatever suggestions he gives, no, I put it on table. ओके. I don't just deny him. हम तीनों सीख रहे हैं. See, this is learning phase for all three of us, Right. where we want to work together and we don't want any frictions. See, difference of opinion आने ही वाला है. हाँ. Okay. ठीक बात है. वो बोलते हैं ना, मन मुटाव नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, और मतभेद तो अच्छे ही होते हैं. हाँ, मतभेद होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. हाँ हाँ. So you're enjoying him being a part of I'm very dynamic much now? enjoying. I feel so nice that he is taking over so fast हाँ. and very nicely. हाँ. जेलिंग विद टीम ले लो, या अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ले लो, या उसके ऊपर उसके ओपिनियंस देने हैं या सजेशंस देने हैं. और एक होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना. हम हमेशा चाहते हैं कि हमें इंट्राप्रेनर चाहिए, इंट्राप्रेनर कंपनी में कोई हो जाए, कोई हो जाए. सो आई एम लुकिंग हिम एज एन इंट्राप्रेनर एट द मोमेंट, टिल द टाइम ही फाइंड्स हिज ओन निश्चय कि हाँ मुझे इसमें काम करना है. मुझे इसमें क्या काम बात करना है, है. क्या बात. और ऐसा लगता है ना कि कुछ अच्छा किया है हमने, कुछ अच्छा बिल्ड किया है, ताकि कि बच्चे आ पा रहे हैं ना उसके अंदर. अगर इतना वर्थ होता नहीं तो वो कोई भी नहीं आता ना, यंगर जनरेशन को तो होता ही है. दैट कल परसों उसको पूछा था, अरे एंजॉयिंग इट. हाँ, वो पूछा था. मैंने पूछा था. क्या होता है ना कि हम अभी रोल जो होता है, मदर का रोल जो है ना, वो बाकी सारे रोल मैंने स्प्लिट कर लिए कि ऑफिस में हम लोग तो डायरेक्टर की तरह काम करेंगे, घर में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे या पेरेंट्स हो जाएंगे. लेकिन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है. माँ ही रहता है ना. वो माँ ही रहती है. कहीं पे भी चले जाओ. या सो उसमें मुझे ना खुद को रोकना पड़ता है कि नहीं, लेट हिम डू दिस, लेट You want to go ahead, help वो him. जब पूछेगा तब बताऊंगी मैं. But then for that you have to hold yourself back. I have to hold myself. क्या बात है. But so happy to listen to this that he's joined, and एक अलग खुशी होती है ना when your children enter into business. या जो हमने कुछ बनाया है उसको पसंद आ रहा है तो. हाँ, और फिर ऐसा लगता है कि हाँ ये इसको और आगे एक नए लेवल पे लेके जाएगा ना. पूरी नई जान आ जाती है, पूरी क्या बोलते हैं, एनर्जी नई आ जाती है. हर जगह पे आप देखो ना, तो टीम में ले लो, बिजनेस पे ले लो, क्लाइंट के एंड पे ले लो, कि अच्छा लगता है कि नई जनरेशन, इवन बैंकर्स फील नाइस, नेक्स्ट जनरेशन हैज कम. सही बात है, सही बात है. Everybody feels nice. Great. You've been a part of the 10x community, which was Chris's Entrepreneur Forum, and I'm sure that you are a part of other entrepreneur networks as well. So, what do you think is the major getaway or takeaway for you for being a part of such groups, such entrepreneur groups? Is it just networking, or what is it? I mean, what makes you be a part? Because being a part of any group requires time, requires effort. If you are in a if you are in an active role, then much more than time, right? So kuch to hai that we are there. So why should a person be in such networks? What is it that you can gain out of it? See, I'm part of many. I was and I am part of couple of these entrepreneurs network forum or chapter or whatever you call it. Every entrepreneur networking or this chapters have different philosophy. All their base is different.
किसी का होता है कि ग्रोथ ऑफ बिजनेस बाय जनरेटिंग बिजनेस फ्रॉम योर कॉन्टेक्ट स्फीयर्स. ओके. ओके. किसी का होता है कि ग्रोथ बाय लर्निंग. ओके. ओके. किसी का होता है ग्रोथ बाय लर्निंग फ्रॉम पीयर्स. पीयर्स. ओके. किसी का होता है लर्निंग फ्रॉम अ कोच. ओके. ठीक बात है. तो हर किसी का अलग अलग होता है. सो आई हैव gained from all these organizations. ग्रेट. So I was part of organization where you were what do you say, asking for business. हाँ. So it's more about it's a revenue based. Yeah, you generate numbers business. based. Yeah, it was for purely for मुझे तू काम दे. हाँ. या Purely काम for दिलवा. revenue. Purely ठीक for बात. revenue. Very. कोई नेटवर्किंग होता है जहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं. सो वो इंटरनेशनल नेटवर्क होते हैं. वहाँ पे आप सिर्फ नेटवर्किंग, लर्निंग, आपका शायद होराइजन ब्रॉडन हो जाता है होराइजन ना, ब्रॉडन इतना हो बड़ा जाता है. एक्सपोजर मिलता है. फिर वो इन्वेस्टर आपको मिल जाता है या कोई हाँ, आइडियाज मिल जाती है. हाँ, वैसे हो जाते हैं. हाँ. कोई होता है प्योरली आप लर्निंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कोच है और आप हैं. ठीक बात हाँ, है. और फिर वहाँ पे आपका, वहाँ पे जो आपके साथ के को लर्नर जो थे, हाँ. उनके साथ आपका नेटवर्क हो जाता है. बिल्कुल. बिल्कुल. कोई होता है कि गिविंग बैक टू सोसाइटी होता है, ओके. कि हाउ यू कैन गिव बैक टू सोसाइटी. सो नाउ आई वाज नॉट अटैच्ड विद एनी व्हाट यू से, आई नेवर न्यू कि मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकती हूँ. तो हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अपने बिजनेस को ही हमने ये बनाया कि वी जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल. राइट. अभी नाउ गिविंग बैक टू सोसाइटी नो व्हाट वे दैट ऑल द बिजनेसेस शुड बी क्वालिटी बिजनेसेस. पीपल शुड डू बिजनेस. जैसे 10x में भी हम लोग सिखाते हैं कि व्हाट आर द एथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेसेस. सही बात है. So I think it is really great that you can be a so part of you such should groups. be part of these organizations, because every organization brings something different on table, and you are there to learn, and as much as like a sponge you have to take it. क्या बात है. हाँ, because मुझे पूछना था ये, because I knew that you were active, and कभी-कभी लोगों को समझता नहीं है कि what exactly we are in there for. So I thought maybe. But clarity होनी चाहिए कि आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हो या लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हो या आप टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप कहाँ हो. बिल्कुल. तो वो बाइफर्केशन करके अगर आप वहाँ पे जाते हो ना, देन you also gain and your co-members also gain. Definitely, because जब आप किसी के साथ होते हो तो फिर you also contribute ना in some way or the other. तो आप सिर्फ एक होता है लेना तो है ही, वो तो मिलता ही है, बट अगर आप कुछ दे भी पाते हो, सो आई थिंक एक्स्ट्रापोलेट हो जाता है आपके होने का, आपका जो टाइम है ना, वो देने का उसका रिजल्ट डबल हो जाता है. गिविंग आल्सो. एमजी सर ने ही बताया था, आई थिंक, कि आप कहीं भी जाओ ना, बी अ कंट्रीब्यूटर. हाँ. किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो या शादी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो ना, ऐसे कुछ करो कि हाँ आप आए थे वहाँ पे, कंट्रीब्यूट करो. वो मुझे अभी भी याद रहता है कि कहीं भी जाते हो ना, तो ऐसे फिर गए खाना खाया और आ गए, वैसे नहीं होना चाहिए. आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. आई थिंक ये ना बार बार रिमाइंड करना पड़ता है. मतलब नहीं, मुझे भी याद आता है, वो इतना दिमाग में बैठ गया है ना, याद आता है. और फिर आप ना देन यू थिंक ऑफ वेज कि आप कैसे कर सकते हो. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. लाइफ 360 का पहले वाला जो था ना, हाँ, ईपी था, एलएलपी, लाइफ लीडरशिप प्रोग्राम, उसका लर्निंग है ये. उसका लर्निंग है ये. और वो मुझे लगता है बहुत बार रिपीट करते हैं सर, मतलब अलग अलग फोरम्स में. बढ़िया. There is one thing that I remember very distinctly, maybe some conversation of ours where you spoke about how you always communicated with your children in your native language. Because I see a lot of young mothers कि वो इंग्लिश में ही बात करती हैं, मतलब वो बच्चे को खाना खिलाती है तो भी इंग्लिश में ही बोलती है, प्यार करती है तो भी इंग्लिश में ही बोलती है. और बड़ा awkward लगता है मुझे कि बच्चे को इंग्लिश में कैसे प्यार कर सकते हो आप, मतलब ऐसा होता है ना. Somewhere I feel the words are there, लेकिन इमोशन मुझे मिसिंग लगता है. And then I think we just had that discussion. So कुछ शेयर करो उस बारे में. I want a lot of people to hear about this aspect. See, I speak 5 languages. Okay. And I can read, write, speak 4 languages, because one language is dialect. It doesn't have. It doesn't have written. So I speak 5 languages with equal comfort. अच्छा. And language is something which makes you rich. बिल्कुल. वेरी रिच. एक वर्ड आता है ना तो फिर मैं हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं, तो दिमाग में शुरू हो जाता है. मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश. ये चारों लैंग्वेज अभी मेरी इक्वल हो गई है. क्या बात. आई लर्नड इन गुजराती मीडियम, देन इंग्लिश मीडियम, और हिंदी मुझे पहले से बहुत पसंद है. सो मेरी हिंदी, और 12th तक मैंने हिंदी पढ़ी है. अच्छा. एंड मराठी आई लर्नड आफ्टर माय मैरिज. अच्छा. हाँ, मैरिड ब्राह्मण. Yeah. And they want their language to be pure. बिल्कुल. They don't want adulteration in their language. So
फिर जब बच्चे हुए ना तब हाँ। मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज गुजराती तो मैं बोलती नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स से बोलती हूँ। ठीक बात है। घर में हम अलग लैंग्वेज बोलते हैं, विच इज़ मिक्स ऑफ 3-4 लैंग्वेजेस। अच्छा। तो बच्चों को गुजराती सिखाऊं, वो सिखाऊं या हाँ, मराठी हाँ। सिखाऊं, सो दैट वाज अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक कौन है। से मीडियम में पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे हाँ। पापा क्लियर थे कि जिस मीडियम में आपकी मम्मी पढ़ी है उसी मीडियम में आप पढ़ोगे। अच्छा। हाँ, तो मेरी मम्मी गुजराती मीडियम में पढ़ी थी, तो हम हाँ। पूना में रह के गुजराती मीडियम में पढ़े हैं। अच्छा। बिकॉज योर मदर शुड बी एबल टू टीच यू टीच अप यू। टू 7th-8th स्टैंडर्ड। अच्छा। ओके। हाँ, ये उनका कहना था। तो ठीक है। मेरे पास अभी ऑप्शन था कि मैं उनको मराठी में डालूं, हाँ। लेकिन ना नितिन मराठी में सीखे हैं ना मैं हाँ। मराठी में सीखी हूँ। हाँ। तो मुझे मराठी में डालना यानी मेरे लिए दिक्कत हो मुश्किल है, जाती है। तो कैसे फिर इंग्लिश पढ़ाओगे? मीडियम के सामने कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है। एंड सेकेंडली आई हैव सीन हाउ डिफिकल्ट इट इज वंस यू कम फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम टू डू इंग्लिश मीडियम, स्विच इट टू इज इंग्लिश। स्विच हाँ। टू unnecessarily. You are spending your 1 or 2 years in learning another language, and हाँ। you lose a lot many things. You You cannot lose a take part lot. into activities. Right. And I went from Gujarati medium school to Ferguson College. हाँ, एकदम डिफरेंट। पूरा मीन्स कल्चर भी डिफरेंट, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। सो इंग्लिश मीडियम के सामने कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है। स्कूल में बोलते थे कि घर में आप जाके इंग्लिश में बोलना। हाँ, बट आई टिपिकल कॉन्वेंट स्कूल्स में नहीं, होता है। एवरी इंग्लिश मीडियम स्कूल एवरी सेज इंग्लिश कि मीडियम स्पीक स्कूल। इन अच्छा। इंग्लिश एट होम। एट होम। व्हाट आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ, इंग्लिश सिखाने के लिए मैंने स्कूल में डाला है, हाँ, ये वो आपका काम तुम्हारा है। काम है। हाँ। मैं मेरे बच्चों के साथ मैं मराठी में बात करूंगी, जिस हाँ। लैंग्वेज में दादी भी बोल रही है, उनकी हाँ। उनकी रिलेटिव सारे जो है, हाँ। जिस घर में भी मैं शादी करके गई हूँ, अभी पेट्रियार्की है तो मैं शादी करके उस घर में गई हूँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे बच्चों ने दादी के साथ दादी को कंफर्ट करना है। हाँ। दादी को 4 नए इंग्लिश शब्द नहीं सीखने सीखने हैं कि अब तुम इंग्लिश में हमसे बातें हाँ, करो। और भाषा जितनी प्योर होगी ना, अभी हम लोग इंग्लिश वर्ड्स बहुत यूज कर रहे हैं, मैं भी करने हाँ। लगी हूँ, और वो उसका हाँ। कोई हमारे पास अभी ये नहीं है, पर्याय नहीं है उसका कुछ भी। लेकिन वो लैंग्वेज जो है ना, जितनी प्योर होगी ना उतना उसका मजा आता है। तो बिल्कुल। मैंने गुजराती सिखाने की कोशिश की थी। हम्म। मैं सुबह सिखा के जाती थी घोड़ो, और शाम को आके वो घोड़ा बोलते थे। फिर मैंने तो जाने दो, अभी गुजराती नहीं सिखाते लेकिन मराठी सिखाते हैं, हाँ। क्योंकि बच्चों के साथ आपकी ना एक खुद की होनी चाहिए, और बहुत हाँ। मजा आता है कि उस अगर आप कहीं पे मिले हो हाँ। और आप दोनों अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है। हाँ। तो तुम्हारे पास तो बहुत एंड इट ऑप्शन इज योर ड्यूटी टू टीच योर नेटिव लैंग्वेज टू योर किड। बिल्कुल। आपको सिखाया है तो ये जो धरोहर है आगे कौन लेके जाएगा। हाँ। ये भाषा का जो है, अब हम लोग मल्टीलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल से मोनोलिंगुअल क्यों हो रहे हैं हम लोग। इतनी बड़ी देन थी हम खोती जा लोगों रही को, है ना, हाँ, हमें भाषाएं इतनी बड़ी खोती जा देन रही है। थी कि हमारे बच्चे 3-4 लैंग्वेज तो बोल ही लेते थे। घर में एक अलग बोल रहे हैं, हाँ, पड़ोस स्कूल में में कोई अलग बोल रहे हैं। तमिलियन रह रहा है, कोई बंगाली रह रहा है, तो हम सीख रहे हैं वो भाषा। उन सब से हम सब लोग इंग्लिश के ऊपर जा रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश, हाँ, बट आई वांट एवरीबडी टू नो एटलीस्ट 2 to 3 लैंग्वेजेस। सही बात है। So और now- कम से कम जो अपनी मदर टंग है, जो अपनी मातृभाषा है, उसको तो संजोना ही चाहिए। मीन्स वही बोल रहे हैं, ये आपकी धरोहर है। धरोहर है, उसको बिल्कुल। आपको आगे देना ही है। बिल्कुल। और अभी जो हो रहा है ना, वो इंग्लिश और नेटिव लैंग्वेज का इतना मिक्सचर हो रहा है ना, प्लीज ईट ना, बाप रे। प्लीज रन ना, प्लीज गो ना, इस तरह से हम लोग मिक्स कर रहे हैं ना लैंग्वेज। मीन्स ये चिड़िया ही नहीं बोलेंगे, दिस इज स्पैरो, हाँ। ये स्पैरो है, ऐसे बात हाँ, करते हैं हम लोग। तो sad वो है। भी है ना, इट्स नॉट सैड, आई थिंक दे डोंट गिव दैट मच डीप थॉट टू दैट, दे आर नॉट थिंकिंग। उनको लगता है कि बच्चे को स्कूल में कंफर्ट करने के लिए हमें सीखनी है वो भाषा और उनको कंफर्टेबल करना है। बच्चे सीख लेते हैं, डोंट वरी अबाउट देम। हाँ, बच्चे सीख बच्चे लेते सीख हैं। लेते हैं, और टूटी फूटी वो टीचर भी समझ लेती है। हाँ, और मुझे वही लगता है कि स्कूल में भेजा है ना भाषा सीखने के लिए, एक फॉरेन लैंग्वेज है वो, तो वो जाके सीख लेगा वहाँ पे। और दूसरा क्या हो रहा है ना कि स्कूलों में भी जो भाषा सिखाई जा रही है ना, उसकी लेवल बहुत कम हो रही है। ग्रामेटिकली देखो ना, तो मराठी या हिंदी जो सिखा रहे हैं ना, जो हम लोग सीखे थे, समास और छंद और मात्रा ये सब सीखे थे, ये लोग नहीं सीख रहे हैं, अभी इनके सिलेबस में ही नहीं है। तो वो हल्का जो कर दिया है सब। हल्का कर दिया, तो लेकिन उसकी वजह से क्या है ना कि वो जो लैंग्वेज की भी एक मजा है, वो रिचनेस एक्सपीरियंस हाँ, नहीं वो करते ना रिचनेस बच्चे। नहीं कर सकते। अभी कोई भी वर्ड लेती हूँ ना, तो मैं उसको वो संधि विच्छेद करती हूँ, उसको तोड़ के मैं ये कैसे शब्द हो रहा है, वो कैसे, ये मेरे दिमाग में ही खेल चलता रहता है। क्या बात है। हाँ। वन मोर क्वेश्चन, यू हैव बीन एन एविड लर्नर, राइट? इतना सब, सो व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग फॉर यू? एक होता है यू आर अ पार्ट ऑफ फोरम्स, you are doing some programs, but apart from that, anything that you would like to advise ki the best way to upgrade yourself? I think learning should be person means in person.
Okay. मुझे ऑनलाइन लर्निंग नहीं पसंद है. Same here. मे बी उसमें लोग बोलेंगे आई एम ऑफ ओल्ड जनरेशन. हाँ. वो कोविड के वक्त जब मीटिंग्स लेनी रहती थी ना, मेरी हाँ. जान पे आता था. हाँ. और वहाँ पे बच्चे तो थे, इतने कंफर्टेबली काम कर रहे थे ना, दे वर वेरी कंफर्टेबल. वो मीटिंग में सामने वो बहुत सारे लोग हैं. मैंने एचएम नहीं अटेंड किया, एक या दो करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, हाँ. क्योंकि कनेक्ट ही नहीं होता है. और कोविड के वक्त ऐसे भी था कि मुझे कुछ सिखाना था. आई वॉज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ना, तो कुछ सिखाना है. हाँ. तो यू आर टॉकिंग बट देर इज नो रिस्पॉन्स. There is no response. सो यू आर टॉकिंग विद द स्क्रीन. हाँ. You're talking to that small बिंदु. बिंदु. और वहाँ पे अगर आपकी फोटो लगा तो आपसे बोल रहे हैं, या जो भी उनके फोटो लगा लो, फोटो से बात. फाइनली इट्स अ वॉल यू आर टॉकिंग टू. बिल्कुल. रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फिर बोल रहा था एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल. मुझे लगता है कि अगर कोई इफ यू लर्न फ्रॉम अ पर्सन, इट्स गुड, एंड देन यू लर्न फ्रॉम योर पीयर्स. Okay. या सो अकेले 1-to-1 भी मुझे पसंद नहीं है. सब्जेक्ट अगर वैसा है तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू हैव क्लासरूम. Classroom learning is the best Classroom learning. learning is the best learning. And you read books very often? Now I have stopped reading. I don't know, somehow वो अच्छा. concentration span जो है ना, वो हाँ. ऐसे ऐसे करने का हो गया है ना. है ना? So I am not able to read, but I have started listening to audiobooks. अच्छा. So reading जो है वो चालू है मेरा, अच्छा. but I'm listening to. So That's when I good. go for walk, हाँ हाँ. it's I have anchored that with my walk. Walk है Great. तो listening है. Very nice. Very Because I nice. don't listen to music, अच्छा. so I listen to audiobooks. हाँ. ये एक बहुत ना change आया है. Even if I look at myself, earlier I used to read. I mean, it was I had a good stamina that I would say for reading. And now because of the mobile, because of social media, अब मैं बच्चों को डांटती हूँ कि इतना टाइम क्यों, बट फिर मैं खुद को देखती हूँ, मैं कहती हूँ मैं भी वही करती हूँ. सो आई हैव टू बी कॉन्शियस कि हाउ मच टाइम एम आई स्पेंडिंग. एंड बिकॉज ऑफ दैट ना मैंने ऐसा महसूस किया है कि मेरा पढ़ने का जो वो है ना स्टैमिना, वो इतना कम हो गया है. पहले अगर एक घंटा इट वुड जस्ट गो, आई कैन रीड अ बुक फॉर एन आवर और 2 hours, कुछ नहीं होता था. अभी आई हैव टू एक्चुअली, मतलब वो टाइम वॉच लगाती हूँ मैं. 20 मिनट से पहले आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप, 20 मिनट से पहले आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप. बिकॉज आई थिंक दैट इज अ ड्रॉबैक दैट वी ऑल आर गोइंग थ्रू, कि हमारा जो रीडिंग का स्टैमिना है ना वो कम होते जा रहा है. बहुत कम हो गया है. हाँ. चलो, it was great talking to you. And if there is anything that you would like to share, you most welcome. It was really nice talking to you. और बहुत सारी बातें पता चली, और मुझे लगता है कि ऐसी बातों से ना हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ ले जाते हैं वापस. And I think that is the objective of me talking to you. Okay. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for being here. Thank you for having me. Yes. Great.